Traversing in the narrow lanes of Old Delhi, we felt the oriental culture of India come alive. And in these lanes, near Turkoman Gate, we encountered a board with Bawarchi written on it. There were some workers there engaged in cooking in very large containers. We wondered, who are these people? Because Bawarchi is a term used for people who cook at houses. There was no sign of party, nor any other function or an eatery around then. For whom are these people cooking? Amazed to know that they are still addressed as Bawarchi, a name which they inherited from Mughal era and is prevalent even today. But what are they doing? What are they preparing? एक्चुअली क्या था कि जब मुगल इंडिया में आए थे हिंदुस्तान के अंदर जब आए थे तो उस टाइम में वो अपने साथ सारी चीज़ें लेकर आते थे, जैसे कपड़े धोने वाला, खाना बनाने वाला, खानसामा जिसे कहा करता था उस टाइम में, और उनके काम करने वाले लोग वो अपने पूरे एक लश्कर लेकर आया करते थे। तो उसी लोगों में वहाँ से खानसामा भी आए थे, तो उनके खानसामाओं की हेल्परी के लिए हिंदुस्तान के लोगों ने उनका साथ दिया था। तो वो जो हिंदुस्तान के लोगों ने साथ दिया था, जो लोगों ने खाना सीखा था बनाना, तो वो मुगलों की रेसिपीज़ जो थी हिंदुस्तान के खानसामाओं के पास आ गई थी। तो उसी टाइम से खानदानी शाही खानदानों के साथ हिंदुस्तान के खानसामाओं का जुड़ाव हो गया था। उनके जाने के बाद लोगों ने जाके अपना लोगों को खाना देना कि मुगल खाना किस तरह होता है, क्योंकि ये रेसिपी से मुगलों के जाने के बाद हिंदुस्तान के उन खानसामाओं के पास आ गई थी जो उनके साथ जुड़े हुए थे। They learned the techniques and methods from the Mughal Khansamas and started practicing on their own later on. The method or recipes has been followed since then, and today food is still being cooked in the same manner by a few families within the old Delhi. They follow the same procedure using wood, copper utensils and using homemade masala, relying totally on their instincts. They normally cook on order, preparing dishes as per demand and quantity. Today they have around 22 employees who work from morning till evening. जो कुछ खानदान है, जो दिल्ली के जो पुराने बड़े खानदान हैं, जो हमारे रिश्तेदारी से बिलोंग करते हैं, कुछ ऐसे बड़े घराने हैं जिनके हाथ में ये कुदरती ही बात है कि नेचुरली बात है कि इनके हाथ में एक अलग जायका है। जो पुराने खाने, आज खानों की मुगलाई डिशेस बहुत हैं वैरायटीज़। पहले जो मुगलाई डिशेस थी गिनती चुनती की थी, एक लिमिटेड स्टॉक था कि ये खाना है। आज मुगलाई की क्या खाने के पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अगर खाने की वैरायटी देखी जाए तो आप गिन नहीं सकते, इतनी वैरायटीज़ हैं दुनिया के अंदर खाने की। अप्रॉक्सीमेटली मीट की वैरायटीज़ बहुत हैं, वेज की वैरायटीज़, दाल मखनी, ये वो बहुत वैरायटीज़ दुनिया भर के खाने, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि हर खाना एक जैसा हो जाए। All the raw material is available within the area. Sometimes people bring their own material and otherwise they cook with their own. The principle is that they serve as an extension of home cooking, a practice which started in the Mughal period. Even the rotis are also available nearby, which are also made in the old traditional style. Today we see a different kind of food delivery, from restaurants and fast food chains to end users. The basic idea is same, but the system or name is different. To know better about their modus operandi, we asked them about their method. जैसे पहले के टाइम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो अलग अलग जगहों पे चली गई हैं, आज लोगों के अलग अलग स्टेट के हिसाब से वो ट्रेडिशनल्स हो गए। पहले गलावटी कबाब था, गुलावटी कबाब अब लखनऊ चला गया कि लखनऊ के नाम से मशहूर हो गया कि गुलावटी कबाब लखनऊ का अच्छा होता है। काकोरी कबाब संभल का अच्छा होता है, दिल्ली का खाना कोरमा बिरयानी नारी अच्छा होता है। तब ये सब चीज़ें बढ़ गई हैं, लेकिन उस वक्त जो ख़ानदानी शाही खाने थे, जैसे मुर्ग मुसल्लम हो गया, मुतरंजन हो गया, खीर हो गई, ज़ाफ़रानी चीज़ें हो गई, सोना चांदी चावल हो गई। Their prospective clients seek their assistance for homes, small parties, and large marriage parties. Today, this would seem a little odd, but these people have survived so many centuries. But with modernity knocking on their doors, will they be able to keep it alive? In the competitive world today, these Bawarchis are striving hard to keep their traditions alive.
भाई जो पहले 50 साल पहले ट्रेडिशनल था वही खाने का तरीका कि ये चारकोल पे ही पकाना, उसी तरह खाने को दम देना, उसी तरह खाने को धो के करना। जो सीक्रेट मसाले हैं जो 50 साल पहले थे वही आज सीक्रेट मसाले चलते हैं। वो इस खाने का तरीका, पकाने का तरीका, प्रिपरेशन का तरीका वही है पुराना, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हमने नई टेक्निक्स जोड़ दी हैं। जैसे हमने आज के टाइम में गैस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है कुछ चीज़ों के लिए ओवन्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अपनी कुछ चीज़ों के लिए मसालों के अंदर मिक्सी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, ग्राइंडर का इस्तेमाल करना। पहले ये सारी चीज़ें कूट के होती थी इमाम, जिससे में कूटा जाता था। सीक्रेट मसाले 2-2 घंटे लगा के आदमी कूटता था। आज हम वही काम 10-15 मिनट में बाय मिक्सी करने मसाले तैयार कर लेते हैं। तो ट्रेडिशनल पुराने तरीका और आज कुछ मॉडर्निटी टेक्निक्स को इस्तेमाल करके, लेकिन उसी तरीके से उसी टेस्ट पे उन्हीं मसालों को, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, सिर्फ एक टेक्निकल मर्ज करा है। Though they are doubtful whether future generation will be able to continue with it or not. खाना आने वाली पीढ़ी को भी यही हुनर देंगे। ये एक हमारे लिए हुनर है, एक हमारी अच्छी दीवी बड़ों की देन है, जिससे हमने अपनी ज़िंदगी गुजारी, हमारी सारी चीज़ें इसी से बिलोंग करती हैं। तो हम अपनी पीढ़ी को भी ये कोशिश करेंगे वो ये इस हुनर को सीखे और लोगों की सेवा करें। ये है इरादा हमारा, लेकिन अलग तरीके से, नए डेवलप नए टेक्निक्स के साथ, अपने ट्रेडिशनल भी हो उसके अंदर हमारा और मॉडर्निटी भी हो।